I extend warm welcome to all of you on behalf of Unique Academy, those who are here in front of me and those who are watching online. The topic of today's webinar is UPSC, the career option. Right? How do we look at UPSC in terms of a career? Right? I will talk about what kind of opportunities, career opportunities we'll get once we get through this examination. What kind of nature of job that we have if we get through. That's the first part of the webinar. Second part, we will talk about the examination. Right. See, this is a very fascinating career, no doubt about that. But what are we supposed to do in order to get into that career? Right. So these are two parts we will be discussing today briefly. I'm sharing my presentation so that we have at least some reference point in terms of what we are discussing. So UPSC, a career option, right? This is what we will talk about today. What kind of career option is this? Is it one option or there are multiple options? One. Then we will talk about the examination here. All right, so let's begin with this, which is the core topic of the webinar. UPSC conducts examinations for civil services, right? And that is what we are talking about here. There are certain services which fall into the category of defense, but again, in that category as well, it is about civil services, right? So, for example, there is defense account service, for example. So, accounting is again civil service. It is not about a job in combat, ordnance, like that, right? There is a job in ordnance, but again, it falls in the category of civil service, right? So civil service is different, and military service is different. There are different services: civil service, military service, judicial service, right? Different types of administration I'm talking about. UPSC conducts examination for what is called public administration, right? So we first need to understand what is public administration and what kind of job are we supposed to do in this domain, right? Public administration, or which is generally called administration, is part of governmental structure, right? The government which governs us, right? It is part of it, and government has got different other parts. So three major institutions, organizations of the government are legislature, executive, and judiciary, right? And we know about it. Legislature, our parliament is the legislature, right? Which does the job of law making, policy making, right? Executive, which is responsible for law making, because in India, executive is part of legislature. Executive is part of executive. Kya hota hai? Council of Ministers. It is part of legislature, right? In US, these two things are completely different. In US, executive is not part of legislature, right? So executive is separate and legislature is separate. It is quite possible the current president of US, Joe Biden, right? So Joe Biden belongs to Democratic Party, and there could be majority of Republican Party in their legislature. This is possible because the elections of president and the elections of members of legislature, these two are different things, right? And executive is not responsible to legislature in US. But India mein kya hai? Executive is part of legislature, it is responsible to the legislature. So what it means is, if executive, right, loses majority in the legislature, executive has to resign. So that is how we have that arrangement. So legislature, law making, policy making, and within legislature, it is executive that plays the major role in policy making and law making, because they enjoy the majority in parliament. Executive does another job. What is it? Execution of the policies. Right? Policies are prepared, but those need to be executed, isn't it? Implementation. But execution is a little bit different term. Implementation is done by administration, coming to it. Judiciary. What it does, there is a term called adjudication. Marathi का मतलब न्याय निवाड़ा. So giving justice इसको बोलते हैं ना, ठीक है, न्याय देना.
So that is the work of judiciary. So these are three organs: legislature, executive, and judicial. Are you getting this? Okay. So this is the basic structure that we have. Government organization in terms of legislature, executive, and judiciary. Okay. So these are three organs. Okay. Administration जिसमें हम बात कर रहे हैं, public administration, right, as a career option. So public administration comes under executive because see, executive does the job of execution of policies, right? Okay. And administration or bureaucracy, right, does the actual implementation. And there's a long hierarchy there. कैसा hierarchy है? We know that executive में ये आता है council of ministers, right? But executive में ये भी आता है administration or bureaucracy, isn't it? All of us know that there are ministers like defense minister, home minister, external affairs minister, right? And those ministries, yes. No, this is not about public administration. This is a basic webinar. Okay, fine. So executive has got two organs again, council of ministers and administration of bureaucracy. And please understand, ये दोनों एक साथ काम करते हैं. We know it very well. एक minister है, home minister, he has got a secretary and secretarial staff, right? And they do the job of implementation, execution, right? And administration के अंदर फिर there is a hierarchy. So secretary, joint secretaries, right? Additional secretaries, all of them are generally IAS officers, IFS officers, foreign service, in Ministry of External Affairs. So ये जो officers हैं, IAS, IPS, IFS, they come under civil services. Then there is military and defense service as well, and there is judicial service, as I said in the beginning. ठीक है? तो ये structure समझ में आया? गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी ऑफ थ्री टाइप्स: सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल, राइट? एंड दिस सिविल सर्विसेज, उसमें फिर अलग अलग जो पोस्ट है. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट? थ्रू यूपीएससी एग्जामिनेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज पोस्ट, एंड दिस इज अ लिमिटेड लिस्ट, राइट? दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट पोस्ट इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन. यू कैन रीड दैट, राइट? सो आईएएस, Indian Administrative Services, IFS, Indian Foreign Service, IPS, Indian Police Service, IRS, Indian Revenue Services, IT and Customs. There are two types of them. Okay. So this is the structure of the government, and we are trying to locate what is called public administration in the structure, right? And this is public administration, this part completely. But again, we are focusing on one part of it. So यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके. नाउ through UPSC examination, what kind of career opportunities do we get? See, there are all India services, there are Group A services and Group B services. Are you getting this? So all India services, these three are all India services: Indian Administrative Service, then Indian Police Service, and Indian Forest Service. IFS Forest and IFS Foreign Service. These two are different things, right? What does that mean, all India service? Once you are recruited to these three, you will be posted anywhere in India. Are you getting this? You can get a posting anywhere in India. Doesn't matter which state you belong, right? You may get any kind of cadet. Okay. So Indian Administrative Service, which is again, this service, postings are different. You could be posted in revenue administration or development administration. Now, what is this? Revenue administration kya hota hai? Revenue collection, isn't it? And all the matters related to revenue collection that comes under taxes rate, different taxes and all that. Second aspect, development administration. Okay. Collector jo hota hai na, collector at the district level. Okay, collector and district magistrate, right? That is the post that you get in revenue administration, right? In development and administration, you get the post of CEO, Chief Executive Officer, and generally जो district council होता है ना, जिला परिषद that is called, वहाँ पे,
Okay, CEO, Chief Executive Officer. This is called developmental administration. And collector and district magistrate, DM bolte hain na, DM. So this is revenue administration. Are you getting this? So IAS gets wide exposure. Different fields are there under him, which work right, under his supervision. I will talk more about that later. So this is one All India service. Second, IPS, Indian Police Service. This is more to do with law and order, isn't it? So to look after law and order, we have this service, Indian Police Service. We may also get into different categories within that as well. Law and order है, criminal jurisdiction है, civil jurisdiction है, civil case होते हैं, criminal case होते हैं. Then intelligence भी जा सकते हो आप through this service, right? आपका posting अलग-अलग हो सकता है. Then IFS, Indian Forest Service. इसका exam is conducted by UPSC in a different manner. Preliminary examination is same. Cutoffs are different for IFS. And then mains examination is completely different for IFS, right? This is again a service. See, we know forests are very important. Forest cover is something that is very important, right? And these days, the significance of forest cover has increased a lot, considering the environmental awareness that we are witnessing across the world, right? So it is a service related to Indian forest. So these are three services where if you get these services, you'll be posted anywhere in India. And that's why they're called All India Services. Group A services. See, All India Services in terms of their expanse, where you will be posted, right? There is essentially no difference in the sense category wahi hai. Okay. IFS, Indian Foreign Service, is not a secondary service to IAS, IPS, Indian Forest Service. It is equal in rank. Please try to understand this. ये बस एक category है कि all India level. अब IFS all India कहाँ रहेगा? All over the world रहेगा. So Indian Foreign Service is all over the world. Right? You'll be posted anywhere in the world. And when you come back, you'll be posted in the Ministry of External Affairs. वहाँ पे जो भी अलग-अलग departments हैं, you'll be posted there. Ministry of External Affairs has got different departments. उसके बहुत अलग-अलग departments हैं उसमें. There are territorial divisions. Territorial divisions मतलब, for example, Southeast Asian countries के लिए एक division, Central Asian countries के लिए एक division, West Asian countries के लिए एक division, African countries के लिए एक division, Latin American countries, North American countries, European countries, Scandinavian countries, Oceania. ऐसे 12 divisions है territorial, right? You may get a posting there, right? So you would deal with those countries, okay? And then there are functional divisions in Ministry of External Affairs. What is functional division? Based on function. UN की जो matters है, उसको deal करने के लिए एक team, right? Then WTO की जो matters है, उसको deal करने के लिए एक team. Environment की जो matters है, उसको deal करने के लिए एक team. So IFS officers again get diverse fields for their work, right? Diplomacy to है, no doubt about that. But foreign policy towards different things like environment, for example, globalization, trade and commerce, WTO, right? Health nowadays, right? So all these areas are also there in the IFS service. But the focus is a little bit different. Focus is outside. Foreign policy is a policy dealing with external environment. Dealing with external environment. The external environment में जो अलग-अलग fields है, वो आपके पास आएगा if you get into this service, Indian Foreign Service, right? Then there is IRS. It is about revenue matters, right? So IRS IT है, income tax, and IRS customs है, right? Income tax, you know it very well. जो every one of us, pays income tax once we start earning. उसके slabs होते हैं वगैरह वगैरह. उसका सब कुछ इसके अंदर आएगा. IRS IT और customs क्या है? Import and export duties, right? Import, export duties and other duties. तो उसका जो accounting है, that comes under IRS custom. What is this? Indian Audit and Accounting Service. Indian Audit and Accounting Service. So audit और accounting government जिसका भी करता है, CAT का work देख लो आप थोड़ा सा. Comptroller and Auditor General. That is after spend होने के बाद होता है report उसका. तो government continuously जो audit करता है account, वो it comes here. And this is Indian Defense Account Service. Defense Department का accounting, right? यहाँ पे etc. लिखा है. Long list of services. And Postal Department का है, for example, right? Railways में कई सारे services है. Ordnance Factory में services है. So all these are civil services, civil work.
and not of the military nature, right? There's a long list of posts. How do you get this post? उसके बारे में बात करेंगे, don't worry. Then there is Group B services. यहाँ पे ranking है, Group A अलग है, Group B अलग, right? Group B में क्या आता है? Civil services in armed forces headquarters. Armed forces का जो headquarter होता है, वहाँ पे you need civil servants for different jobs, like accounting है, वहाँ पे जो facilities है, उनकी needs है, वो सारी चीजें जो एक collector district में करता है ना, for the people, civilian people. So those things are to be done for armed personnel. तो वहाँ का civil services. Then civil services in Delhi, Andaman, Nicobar and Pondicherry. We know these are UTs. ये क्या है? Union territories, right? So यहाँ पे central government की तरफ से recruitment होगा. Okay. So यहाँ पे जो Group B services है, those are recruited by UPSC. So civil services in armed forces, civil services in Delhi Union Territory, civil services in Andaman Nicobar and Pondicherry Union Territory, and there's also Pondicherry Police Service additional. Okay. So these are the areas where you will get a job once you get through UPSC examination. Are we clear on that? So All India services, Group A services and Group B services. Right? Okay. There are diverse posts in UPSC examination. Examination एक ही है, but number of posts are many, and the areas, fields that covers, they are many. So this is the only service जिसके लिए थोड़ा सा एक अलग examination है. Preliminary common for all of them, right? Mains examination is different for forest service. Okay, okay. Now, nature of the career. What kind of career you get once you get through this examination? सबसे पहले, there are diverse fields and you have a choice. You can give a choice, right? What you do when you apply for mains examination, there is something called DAF, Detailed Application Form. Detailed Application Form. इसमें it contains almost everything about you, where you come from, what is your name, right? What is your background in terms of education, in terms of अगर job किया है तो होता है ना कि पूरी कुंडली है आपकी UPSC के पास DAF के फॉर्म, Detailed Application Form, and इसमें you are given choices, right? So which service would you like to choose first? So some people may choose IAS as the first choice, some others may go for IPS, some may go for foreign service. It depends, right? So your choice. So what UPSC does ultimately is your choice and your rank. इसको टैली करके आपको सर्विस दी जाती है if you get through. So for example, if you get All India rank 1 and if your choice is IPS, you will get IPS. Are you getting this? ये हो सकता है, this is possible, right? If you have rank 1 and IAS, तो IAS मिल जाएगा. Suppose आपका रैंक कहीं पे 200 है, for example, ठीक है, and you give IAS as the first preference, IPS as second preference, you may get IPS. क्योंकि हो सकता है कि number of posts for IAS may be 100 है, तो already exhaust हो चुका है, right? तो आपको अगला पोस्ट आपने जो दिया है in terms of your choice. But एक बात है, there are different services and you get that option, and you can have your own liking. There are people who want to become IFS. I can give you an example. There was one student of UNIC, Maitre Kulkarni Namka, right? And uska rank 103 tha, if I'm not wrong. And in that year, he could have been IAS officer, but he preferred IFS. Okay, so he got IFS. So liking ka matter hai. If you like foreign service, you can go there. If you want to be into police service, you can go there. So that option is there. So there are diverse fields from which you can choose your service. Okay, ये बात अलग है, you have to be there in the top 50, 100 to get the service of your choice. Okay, that is there. Competition is there. Then administration, and particularly public administration, is quite a challenging job. एक बात समझ लो, गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है. Do you know this? Even a corporate company has got administration, but corporate company में जो administration होता है, that is quite limited job and not very important as well. Do you know this? कंपनी का काम क्या होता है?
प्रॉफिट मेकिंग, राइट? द होल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, राइट? तो वहां पे जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक मैकेनिकल कंपनी है तो मैकेनिकल इंजीनियर इंपॉर्टेंट बन जाता है जो फील्ड पे काम कर रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? है ना? आईटी कंपनी तो आईटी इंजीनियर इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, है ना? एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। सो वन हु जनरेट्स रेवेन्यू, that person becomes important in corporate industry. So that administration is different. The administration that we're talking about here is public administration, right? It is administration of the people. And in a particular company, the employees are bound by the rules of that company, which is a narrow domain. The employee, the moment he comes out of the company, right, he comes in the domain of public, which is unlimited domain. Right? There is no limit to it. And there are lots of aspects. Human life has got lots of aspects. We have a political aspect, we have economic aspect, we have cultural aspect, we have social aspect, right? Environmental aspect these days, right? So all these things would come under you once you are IAS officer, right? For example. So district collector is responsible for many things. आपने कभी कभी ये सुना होगा न्यूज में कि कोविड पैंडेमिक तो हुआ था, राइट? कोविड पैंडेमिक में सारे कलेक्टर लग गए थे काम पे। डीएम का काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कलेक्टर का काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट, उसका एडजुडिकेशन। लेकिन जब ऐसे काम आते, इलेक्शन का भी काम करता है डीएम। सो इट्स लाइक ऐसा नहीं कि आपको ये दिया तो उतना ही करना है। तो यू नो, आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द करियर, किसी का भी करियर हो। ए पर्सन वांट्स, what does a person want from career? क्या चाहता है इंसान? मैं आपको बताता हूँ। नहीं रुको, सबसे पहले यू नीड मनी। सी एवरीबडी नीड्स मनी, लिवलीहुड जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। सेकंड, पीपल वांट प्रेस्टीज, थोड़ा सा सोसाइटी में स्टेटस एंड प्रेस्टीज। थर्ड, पीपल वांट पावर। So distinctly these three things people want. They want money, they want prestige status, they want power. All these three things you get in single stroke. In a company, ठीक है, corporate का hierarchy होता है. You join as a simple employee, and then at the end of your life you become something, CEO or something, you know, managing director or something like that. तो लाइफ के एंड में थोड़ा सा प्रेस्टीज आता है, पावर आता है। यहाँ पे डे वन को यू हैव ऑल दिस थिंग्स इन योर हैंड, ठीक है। मैं आपको ड्रीम नहीं दिखा रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मेंटली यू मस्ट बी रेडी फॉर द कंपटीशन, एंड मेंटली यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सेप्टिंग फेल्यूर एज वेल। समझ में आ रहा है? ये हार्श रियलिटी है लाइफ का, राइट? और इतना भी हार्श नहीं है, क्योंकि जब तक फेल्यूर नहीं आता ना, तब तक सक्सेस का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता इंसान। Yesterday, one of our students who is serving as an IAS officer in Bengal, he came and we had an interaction with the students. He gave one very interesting statement. He said, those who get through this examination, right? मतलब जो पास होते हैं, हाँ, वो, और जो पास नहीं होते उनके बारे में स्टेटमेंट उसने बताया। बोलता है, those who fail in this examination, life is tough for them, and those who pass this examination, life is tougher for them. ये बात सही है। तो वो जो होता है ना कि करियर में आपको ये सब चाहिए, एंड सम पीपल लुक फॉर दिस। कोई एक काम है किसी भी इंसान का, वी डू दैट एवरी डे, राइट? वी गो टू द ऑफिस, वी डू दैट चंक ऑफ जॉब एंड वी कम बैक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप मोनोटोनी, जॉब मोनोटोनस बन जाता है। सो यू लुक फॉर सम काइंड ऑफ अ चेंज, राइट? सो इफ यू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड यू, वो बोलेंगे कि अरे 20 साल से वही कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ। ये होता है ना, यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है। एवरी डे देयर आर न्यू इश्यूज, न्यू चैलेंजेस। यू मस्ट बी हियरिंग दिस, राइट? पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट अग्निपथ स्कीम। तो राइट्स जहाँ पे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहे हैं, यू आर एट द फ्रंट देयर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू आर इनटू पुलिस सर्विस, IAS, ठीक है। तो बात ये है, एवरी डे देयर आर न्यू चैलेंजेस। तो जिनको ये पसंद आता है कि चैलेंजिंग जॉब, सम काइंड ऑफ अ चेंज, with all these things there in place, power, status, prestige, this is the career option, okay? So very interesting fields. Some people have interest in, you know, accounting, revenue matters, so you have different services here. Indian Revenue Service, customs ka bhi hai, IT ka bhi hai, right? And then IAS also deals with revenue, but income tax,
sorry, all other taxes rather, revenue, all the indirect taxes, right? That comes here. This is about law and order. कुछ लोगों को पता है, they have interest in criminal administration. Some people have that interest, right? They are inspired. Okay, I want to do something in this field. So they can join IPS and they can express their desire to get into all these things. जो crime deal करने वाले अलग-अलग bodies हैं इंडिया में. Some people are interested in intelligence. IPS होते हैं लेकिन उनको लगता है कि नहीं मुझे intelligence में interest है. So they go into that direction, right? They join, for example, IB, RAW. IB RAW के exams है लेकिन IAS या फिर IPS वहाँ पे जाता है ना, तो he is directly at the very higher level in the hierarchy of administration. So ये एक examination in single stroke, you get everything that you desire in life, right? Very fascinating kind of career, right? Okay, so there are diverse fields to choose from. That is one. There are a number of challenges in the job. You have to be always alert, right? Working. There's a lot of pressure. But at the same time, you have a huge team under you. Okay, a huge team. So you have to just supervise them, get the work done. Wo skills zaruri hai. And you are to be generalist, not a specialist of any one field, but you should know the art of getting work done from the specialist. Because एक कलेक्टर के अंदर यहाँ पे वो जो पॉइंट है, ये जो दो सर्विस है ना, IAS एंड IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस, ये ऐसी सर्विसेज है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स आते हैं. ठीक है, I will talk about both of them. But if you look at the other services, ये जो है फॉरेस्ट सर्विस, देन IRS, IAAS, IDAS, this is about forest. एक स्पेसिफाइड फील्ड है वहां पे, राइट? उसके रिसोर्सेस. IRS वो इतना स्पेसिफिक है, IRS IT, IRS कस्टम्स. या तो डीलिंग विद इनकम टैक्स, यू आर डीलिंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज, राइट? IAAS यू आर डीलिंग विद ऑडिट एंड अकाउंटिंग. IDAS यू आर डीलिंग विद डिफेंस अकाउंट्स. एक डिफाइंड स्फीयर है वहां पे. लेकिन IAS का डिफाइंड स्फीयर नहीं है वैसे, और IFS का भी नहीं है, because they deal with even IPS for that matter. It is more to do with law and order. हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा और वेरिएशन है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि you may go for civil cases, you may go for criminal cases, right? Choice है थोड़ा सा, intelligence for that matter. But all of them deal with what? Law and order के issues. तो थोड़ा सा defined sphere है उसका. लेकिन IAS और IFS का कोई defined sphere नहीं है. There is no defined sphere, right? So IAS will deal with diverse issues: health, education, right? Nutrition, hunger, poverty, different aspects of the life that we see in day-to-day administration, even law and order for that matter. Do you know this? IAS and IFS both work together in a district whenever there is a situation of that kind. Right? छोरे कुछ छोरे दोनों साथ में काम करते हैं, पता है? But ultimate authority is with IAS. क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि IAS को IPS के ऊपर रखना है, ऐसा नहीं है. वो in terms of rank they are same, but the point is IAS has got different aspects in front of him, so he can make a choice. ठीक है, in terms of what is to be done, how to manage. दोनों एक साथ काम करते हैं, रैंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं. बट बात ये है कि अलग अलग फील्ड्स है ना उसके पास, तो he has a better view. That's it. एडवांटेज है उसके पास in terms of working in different fields, right? कुछ भी हो डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले IAS मतलब वहां पे जो कलेक्टर है उसको पूछा जाता है. कोविड के केसेस बढ़ गए तो इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा जाता है IAS को, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना? तो वो सवाल क्या करेगा पता है क्या? उसको मिनिस्टर पूछेगा या फिर उसका डिविजनल कमिश्नर पूछेगा. ये क्या करेगा? इसके अंडर एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, IAS के अंडर. हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, PG किया हुआ, MD MS, राइट? इसको फोन है, क्या चल रहा है, इतने केसेस क्यों आए? तो आपको इतना बोलना है, सर आई विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डेटा. फोन रखो, दूसरा फोन उठाओ, इसको फोन करो, हेलो डॉक्टर, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई केसेस आर इंक्रीजिंग? सो डॉक्टर विल से समथिंग, प्लीज कम टू माय केबिन इमीडिएटली. विल कम टू केबिन, मैं कम इन सर बोल के, फिर वो जो बताएगा यू वुड नोट इट डाउन, यू विल गिव द ऑर्डर्स कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, टेल मी. All the provisions can be done. मेडिसिन की बात करो, लॉकडाउन था ना एट दैट टाइम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करो, व्हाट एवर यू वांट. डॉक्टर ये तो नहीं करेगा लॉकडाउन, तो इमीडिएटली क्या करेगा कलेक्टर? he would talk to IPS officer and other people who are enforcing lockdown. So we want strict implementation.
तो पूरा कर्नल जिसको बोलते हैं ना, सेंटर हो गया वो एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डाइवर्स फील्ड है आईएएस। एनीथिंग दैट हैपेंस, डिजास्टर हो गया कहीं पे आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपको देखना पड़ता है, राइट। एजुकेशन की पैरामीटर्स नीचे जा रहे हैं, आपको पूछा जाएगा। हेल्थ पैरामीटर्स, दैट मीन्स देयर आर पीपल इन सोसाइटी हु वांट सच काइंड ऑफ जॉब्स, जहां पे अलग अलग चीजें हैं, मैं अलग अलग चीजों को हैंडल करना चाहता हूँ। ये जो एक एटीट्यूड होता है कुछ लोगों का, उनके लिए सही में बेस्ट जॉब है। और ऐसे भी लोग होते हैं में से जो दे आर लाइक, आई वांट ए स्पेसिफिक फील्ड, मुझे ना हर फील्ड में नहीं करना है, आई वांट ए स्पेसिफिक फील्ड, मुझे पुलिस सर्विस ही करना है, यू कैन गो फॉर इट, राइट। यू कैन गो फॉर रेवेन्यू सर्विस। समझ में आ रहा है? ओके। आईएफएस का भी ऐसा ही कुछ, yes, I understand it is more specific than IAS, right? IFS में foreign service is more about diplomacy, foreign policy को implement करना। लेकिन if you देखो, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? पार्लियामेंट, एंड विद इन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। एंड व्हेन यू से पॉलिसी, इसकी दो डायमेंशंस है, एक्सटर्नल एंड internal, right? So for example, make in India is internal policy, isn't it? Then act is policy is external policy. Are you getting this? कोई भी एक पॉलिसी ले लो आप, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइट। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन विद इन इंडिया, राइट। जो डिफरेंट पोस्ट है, आईएएस से लेकर सारे। So one aspect of the policy is dealt with by IAS, और जो external है IFS। अब ये external policy में क्या है exactly? What do we see? The basic thing that we know and that we generally understand is the relation between two nations. वही आता है foreign policy, right? But that is very simplistic understanding. ये बहुत मतलब simplistic understanding है. There is something more than that, right? In foreign policy, you deal with multiple topics again. Pandemic itself has become a foreign policy topic. ठीक है, हाँ। सो इमिग्रेशन सबसे बड़ा मैटर बन गया। इमिग्रेशन किसके थ्रू होता है? मैं लीगल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इलीगल इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, नो, एक काम करते हैं, लेट अस फिनिश ऑफ द टॉपिक फर्स्ट। यू जस्ट नोट डाउन योर क्वेश्चन। विल डू वन थिंग, let me finish this off. You just note down your questions and then we'll take up all the questions at the end of it, because there are online people as well. They won't be able to hear your voice. Okay. So there are two dimensions, as I said. तो second dimension जो है external, उसमें भी कई सारे fields आते हैं. You deal with environment. Paris deal तो जानते होंगे आप. Paris deal, Paris agreement on climate change. तो वहाँ पे every country has committed to some kind of emission cuts, carbon emission में, right? तो वहाँ पे negotiations होता है. There are people working, IFS people working on this, right? So environment, health, again, different social parameters, ये सारी बातें आती है। ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एफटीए हुआ है, तो उसका जो निगोशिएशन है, उसके जो टॉक्स हैं, उसमें फिर से डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है। Getting this? So again, IFS has got wider scope, right, in terms of actual work. ये भी होता है। IFS का जॉब उतना ही फैसिनेटिंग है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वन रिटायर्ड IFS ऑफिसर, ठीक है, राजेंद्र अभ्यंकर सर, उनसे मेरी बात हुई थी। कजाकिस्तान, आपको पता होगा ना, नेशन कजाकिस्तान, राइट? कजाकिस्तान ऑलवेज यूज्ड टू वोट अगेंस्ट इंडिया ऑन द क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो ही वाज पोस्टेड देयर इन कजाकिस्तान। व्हाट ही डिड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन कजाकिस्तान इज he continuously engaged with his counterpart मतलब ये he is diplomat of India, कजाकिस्तान की जो diplomats है, right, गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स, उनके साथ कंटिन्यूअसली कंसल्ट किया, उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कंसल्ट किया, and he brought about a change of opinion of Kazakhstan, right? So Kazakhstan was voting against us, right? Consistent talks करके, negotiate करके, he made them at least abstain from the voting. ठीक है, हम हमारे खिलाफ वोट कर रहे थे, हमारे साइड में नहीं, कम से कम न्यूट्रल रहो, and that also matters a lot. That is diplomatic weight you are creating, right? So again, उसका satisfaction कितना बड़ा होगा, imagine करो. So the kind of career you get is quite fascinating. यहाँ पे ये सब है. There is power, prestige, and you get decent amount of money. ठीक है.
So do not come here for earning huge amount of money. A person requires decent amount of money, and that money is sufficient to have a good life. ठीक है? हाँ, फिर बिजनेसमैन बनो, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, पैसा कमाने में, सिंपल सी बात. IAS ऑफिसर, इनको सब मिलता है. यू गेट गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल डाल रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस कितना हुआ आपको सोचने की जरूरत नहीं है. गाड़ी का मेंटेनेंस गवर्नमेंट कर रहा है, आपको कुक मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको. कल जो आया था अभिजीत IAS ऑफिसर, वो बोलता है सर मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ स्पेंड करूँ, मेरी सैलरी का 4,000 स्पेंड नहीं कर सकता मैं, सब कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर भी खाना है, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया रे. गलत बात है, वेरी बैड. एंड द मोमेंट यू गो करा, ये निकल जाता है आपके हाथ से सबसे पहले, और फिर बाद में ये भी निकल जाता है. तो इंसान जो चाहता है ना करियर से, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन what you do after becoming IAS, IPS, IFS, that decides whether you can maintain this or not. So very fascinating career, there's no doubt about that. Diverse fields, challenging, right? There's no monotony. All these things are advantages in this career. ये सब ठीक है. Now ये पाने के लिए क्या करना पड़ता है? What are we supposed to do in order to get this? Right? Let us talk about that examination which takes you directly to those positions. Okay. So I would talk about different aspects of UPSC examination. This is merely an introduction to this examination. We would try to understand this examination in more detail, right, on the next slide, and we would see as to what we are supposed to do in terms of preparation. Okay. So UPSC examination and introduction. This examination is challenging, exasperating, tiring. ये तीनों टर्म्स सही है. It requires lot of patience, perseverance, right? But it is equally fascinating, enlightening, and empowering. Power हमेशा गवर्नमेंट जो आपको देता है वो नहीं होता. Power also comes from knowledge. There are many IAS officers, there are many IPS officers, लेकिन सारे उतने पावरफुल नहीं होते. क्यों? अशोक खेमका का नाम सुना होगा आपने. You might have heard about him, right? Ajit Doval right now. So they have done something special in their own field. ये कहाँ से आता है पता है क्या? नॉलेज से आता है. और ये एग्जामिनेशन ऐसी है, आपका एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही शुरू होता है. What empowers you the most is knowledge. इस बात को समझो, राइट? योर अंडरस्टैंडिंग, दैट मैटर्स द मोस्ट. और पावर का कॉन्सेप्ट हमेशा गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं. ठीक है. IFS की बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इफ यू एंटर तो आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, राइट? बट आप ये जानते हो दैट देवानी खोबरागडे वाज अरेस्टेड बाय US. यस, ठीक है. उसका अलग एक टॉपिक है उस एपिसोड का. ठीक है, वो लॉज ऑफ US, मेड सर्वेंट के बारे में वगैरह वगैरह. But you know, ये इसलिए हुआ because there could be action taken against it. You should follow the law. ठीक है, rules. Now I will give another example. Have you heard of Dr. Prakash Amte, Magazine Award winner? Right. So Prakash Amte works in Adivasi area for upliftment of those people. Right. Dr. Prakash Amte, after winning Magazine Award, he was invited in US for some kind of function. Right. तो you know it very well. आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे जो एम्बेसी है US की, वहां पे जाकर के इंटरव्यू देना पड़ता है, राइट? सो ही वेंट टू मुंबई फॉर इंटरव्यू एंड वेस्टर्न कंट्रीज, US एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे जाना है ना आपको, वो आपके सारे डिटेल्स पूछते हैं. दे आस्क यू हाउ मच मनी यू हैव इन योर अकाउंट, हाउ मच यू अर्न मंथली, बिकॉज दे हैव अ डाउट ये इंसान उधर आ गया, इसके पैसा है नहीं खर्च करने को, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट? लिटिल बिट ऑफेंडिंग है, बट दिस इज द फैक्ट, राइट? सो दे आस्क्ड हिम व्हाट इज योर मंथली इनकम. ही सेड 3,000 per month. Immediately the interview was wrapped up. He said you cannot go. Dr. Prakash Amte tried to inform him that I am not responsible for the expenditure. There are people who have invited me, they are taking care of my expenditure. I said no. तो निकले वहां से. एंड ही हैड नो फैसिनेशन. लोगों को ना एक क्रेज होता है US जाना, उनका कोई क्रेज नहीं है. ही वर्क्स ऑन द ग्राउंड. निकल गए वहां से.
He was on his way back to his place. तो एम्बेसी से फोन आया, सर प्लीज वापस आ जाओ, वी आर सॉरी। ये भी एक पावर है कि ना किसी आईएएस को मिलता है, ना किसी आईपीएस को मिलता है, ना किसी आईएफएस, किसी को नहीं मिलता, ये काम से मिलता है। जो बनोगे तो जो काम है ना, इस पे डिपेंड करेगा हाउ एनलाइटन, हाउ नॉलेज वाइज एम्पावर्ड यू आर, हाउ कमिटेड यू आर। आप जानते होंगे ना कि दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी मैगजीन से अवार्ड विनर है, ही इज आईआरएस ऑफिसर। आप क्या काम करते हो, उसका इम्पैक्ट क्या है? किरण बेदी, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट शी हैड, शी ओन्ड मैगजीन से अवार्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैगजीन से, मैगजीन से मिले या ना मिले, वो लैमलाइट में आता है। आप अपना काम करो, राइट, दैट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल टुगेदर, राइट। करियर में ये होता है ना, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। उनको वापस, उन्हें क्या बोला पता है क्या? When that officer said, embassy का, यूएस की एम्बेसी का, यूएस is the most powerful nation in the world, we know it very well, right? तो वापस आ जा, बोलते कि मैं नहीं आ सकता वापस, इसलिए क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, मैं फिर से इतना मतलब बस पे स्पेंड करके आ जाऊं। उनके घर में चला गया वो पूरा वीजा एंड एवरीथिंग, यूएस का वीजा, मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ, ये बात सही है कि दिस एग्जामिनेशन गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म, दैट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। बट वहां जाके आप क्या करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उसकी जो शुरुआत है इस एग्जाम से होती है। दिस एग्जामिनेशन, यू नो, इज नो डाउट चैलेंजिंग, एक्सैस्परेटिंग, टायरिंग, इट वुड एग्जॉस्ट यू, राइट, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच एनलाइटनिंग, एनरिचिंग है, फैसिनेटिंग है, राइट, और एम्पावरिंग भी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दिस एग्जामिनेशन थ्रोज ए लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट। वंस यू opt for it, right, you have to understand that it is toughest examination in India. But again, when we say this toughest examination, many people get frightened. Toughest है, छोड़ो फिर कुछ और करते हैं। There is no need to have any kind of fear in the mind. Reason being, toughness is decided by how many people appear and how many people pass the examination. It is mere number game, ratio है वो। It is merely ratio. 8 to 10 lakh people appear, isn't it? And जितने भी post है, 600 to 1000, right? So this is what is the ratio, which is very tough ratio. But again, ये बात समझना पड़ेगा कि 10 लाख में से कुछ 5-6 लाख लोग कुछ काम के नहीं होते। Many of us, you know, just देख के देखना एग्जामिनेशन, कुछ नहीं हुआ तो ये करके देखते हैं। Serious candidates are very less. And preliminary examination, उसका पर्पस ही यही है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को निकाल दें। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग होता है, निकालो जो सीरियस है उनको मेंस एग्जामिनेशन में, एंड दैट नंबर इज प्रिटी लेस। वो हार्डली कितना होता है, 30-35,000 लोग, नॉट मोर देन दैट। तो दैट इज द रियल कॉम्पिटिशन, वहां पे रियल दैट ऑल्सो इज वेरी टफ, because 35,000 people fighting for hardly 600-1,000 posts. So you have to be right there in the top if you want a desired position that you are looking forward to, right? So toughness को ध्यान मत देना, yes, but कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए कि competition बहुत ज्यादा। What does this mean is there is tough competition, very tough competition. This is a 3-staged year-long process of examination. The idea of examination that we have generally is exam आया दे दिया बात खत्म. This is what we do, right, every year in schooling and colleges and universities. But this examination goes on for 1 year. Roughly, COVID pandemic has disturbed the schedule, but roughly in May and June का जो time period है उसमें prelim होता है, right? September October में mains होता है, and then mains का result आने में 1.5-2 महीना उसके बाद फिर interview शुरू होता है। लास्ट इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद कुछ ही दिनों में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ ही दिनों में प्रीलिम है नेक्स्ट। The worst condition is of those people who gave interview and they could not get through, क्योंकि रोने के लिए भी टाइम नहीं है, सामने 5 दिन में 10 दिन में प्रीलिम नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट। सो इट टेस्ट योर पेशेंस। क्या टेस्ट करता है? पेशेंस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, you know, people have faced all these things, right, and with pleasure. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर
लास्ट ईयर मतलब 2021 का जो रिजल्ट लग गया था, इस ईयर का रिजल्ट नहीं. I found one person, one candidate, right, who was quite different. ठीक है, जयंत नहाटा नाम है उसका. ठीक है, उसका कुछ रैंक था 200 समथिंग. ठीक है, and he wanted to improve the rank and he wanted to get into IAS, जो उसका डिजायर्ड सर्विस था. ऑलरेडी उसके पास एक पोस्ट है. ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया. बट कोविड पैंडेमिक की वजह से जो सेकंड वेव आया था, उसकी वजह से उसका जो इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ. ठीक है, सो ही कॉल्ड मी, बोलता है सर इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ है एंड आई वांट मोर इन टर्म्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर. इमेजिन दिस, ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुका है, ये थर्ड चल रहा है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ है, क्या सोच रहा है 4th अटेम्प्ट में, बिकॉज वी हैड अ डिस्कशन, आई न्यू हिज वीक एरियाज, मैंने उसको बोला था कि ये प्लग कर दे बस. बोलता है सर उसके लिए मुझे कंटेंट दे दो. मैंने मेल भी किया, आई कैन शो यू द मेल, डेट के साथ आप देख सकते हो. बोलते सर आपने बुक बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, वो भी बता दो. एंड वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका 56 रैंक है, IAS ऑफिसर आज. बात ये है हाउ कंसिस्टेंट यू आर. किसी एक जयंत की बात नहीं, यहाँ पे बात क्या है, एवरीबडी हैज टू गिव दैट. हाँ, ये सब करने के बाद नहीं हुआ ना, तो देखते हैं क्या करना है लाइफ में, बिकॉज इतना किया आपने, यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, यू विल डू गुड इन लाइफ. लोग क्या करते हैं पता है कि पीपल डोंट प्रिपेयर वेल, दे फेस द फेलियर, और फिर बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया. ये नहीं होना चाहिए, अंदर से पता होना चाहिए आई हैव डन एवरीथिंग. देन देयर आर अदर वेज टू डू थिंग्स. लाइफ डजंट एंड देयर. देयर आर पीपल, आई नो पीपल हु हैव नॉट गॉन थ्रू दिस एग्जामिनेशन, लेकिन दे आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ. So we need to understand this कि बहुत fascinating career है, no doubt about that, but there is a little bit of risk that we carry. क्योंकि tough examination, 3-stage examination, it requires consistency, it requires patience, perseverance, right, hard work. ये एक challenge है. दूसरा, multiplicity of subjects, right. After 10th, we have a choice, right, based on your aptitude, liking, you may choose humanities, you may choose commerce, you may choose science, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं स्कूलिंग में, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे. देयर इज ह्यूमैनिटीज का सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राइट, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, ओके, एंड साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, राइट, एंड देन जो हमने कभी पढ़े नहीं थे, डिजास्टर मैनेजमेंट. स्कूलिंग में कहाँ पढ़ा था ये सब? इंटरनल सिक्योरिटी. Different topics are there, diverse topics. ये पेपर 1, 2, 3 आप देख लो. पेपर 1 में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यू. पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल इश्यूज आया, राइट. पेपर 3 में खिचड़ी है पूरी. वो मुझे तो ऐसा लगता है कि पेपर 1 डिजाइन किया, पेपर 2 डिजाइन किया, पेपर 3 में जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट डाल दो उसमें, राइट. देयर इज इकोनॉमिक्स, देयर इज डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, disaster management, environment ecology, science tech, internal security, etc. And then they came up with ethics and integrity. Usme ethical concepts, philosophies, right, and then case studies. So this is quite exasperating, yes, no doubt about that. This would take a lot of effort from you to cover that syllabus, right? And that is why we generally advise that you should give at least 1.5 year for preparation, thorough preparation, and then only you should go for filling up the form of this examination. Otherwise नहीं करना चाहिए, क्योंकि vast syllabus, 1-1.5 साल लगता है dedicated effort to cover that syllabus. That is another challenge, right? Then you have to choose optional subject. वो आपकी चॉइस का है, लेकिन उसमें डेप्थ चेक किया जाता है, right? So your depth of understanding is checked in optional subject, right? ऐसे भी है. So vast scope of the syllabus. Syllabus is very vast. अगर मैंने आपको broad subject बता दिए. Talk about history. प्रीलिम का सिलेबस क्या बोलता है बताइए? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. मेंस में चले जाओ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला है, अप टू प्रेजेंट बोला है, तो 5 लाख इयर्स का हिस्ट्री है वो. आर यू गेटिंग दिस? सो सिलेबस वास्ट है. ठीक है. जनरली मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी सिलेबस इज एवरीथिंग अंडर द सन, इंक्लूडिंग सन. कि सन के ऊपर भी सवाल आता है कि फ्यूजन रिएक्शन होता है कि फिशन होता है.
हीट कहां से आता है, तो फ्यूजन है तो क्या हो रहा है उसमें एग्जैक्टली, यू शुड नो इट, राइट. सो बात ये है, सिलेबस वास्ट है, बट अगेन डज दैट मीन वी हैव टू रीड एवरीथिंग? आंसर इज नो. हाउ कैन वी लिमिट दैट? वो भी हम समझ सकते हैं. ठीक है, देयर आर टू फैक्टर्स which would limit your syllabus, though it is vast. A very careful reading of syllabus, I will talk about that. Or second, previous year question paper analysis. Third, current affairs. Then you can limit it. It becomes very much manageable. So baat ye hai, nature of the examination is quite challenging. But if you understand the examination thoroughly, and if you have right strategies in place, you can deal with this challenge. Diverse reference basket. आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, बहुत डाइवर्स है, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट एनी वन सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जाम्पल एम लक्ष्मीकांत ले लिया आपने, पेपर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि बात ये, एम लक्ष्मीकांत डील्स विद टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट. देयर इज अ डायनामिक एस्पेक्ट एज वेल, गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट. इट प्राइमरी डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स अस, यू नो, what is India in terms of territory, union जिसको बोलते हैं, citizens के बारे में information, rules क्या है citizenship के, then fundamental rights, DPSP, then central government, president, legislature, executive, state government in similar fashion, local bodies, right, you know, languages of the union, right, state list, central list, diverse things, but those are all structural aspects. वहां पे कहीं पे नरेगा के बारे में information नहीं होगा, मेक इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो आपको कहां से करना पड़ेगा, गवर्नेंस से करना पड़ेगा. एंड देयर इज अ करंट एस्पेक्ट ऑफ इट. तो हर चीज के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 या 3 रेफरेंसेस यूज करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स. सो डाइवर्स रेफरेंस बास्केट है. सो एक चैलेंज क्या है इनिशियली, यू हैव टू रीड all of those references, number 1. Number 2, second challenge, you have to condense it to the minimum possible extent so that you can revise it quickly. So these are 2 important aspects. Challenging है, but can be done. Then critical and dynamic nature of the questions. आपको पता है कि यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे हैं ना, तो हमको एक बुकलेट बनाना पड़ेगा. कीवर्ड्स क्या क्या है और क्या लिखना है आपको. क्रिटिकली एग्जामिन बोल दिया तो क्या लिखना है, इलुस्ट्रेट बोला है तो क्या लिखना है, इवेल्युएट बोला है तो क्या लिखना है, असेस बोला है तो क्या लिखना है. सो इफ यू लुक एट द कमेंट बोला है तो क्या लिखना है, इफ यू लुक एट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस, that itself tells you that UPSC is framing questions which are quite dynamic in nature, right? And that is why you need to get into that mode right from the beginning. एक mode होता है UPSC का, उसमें आ जाना चाहिए, and एक habit बन जाती है फिर, and then you can deal with such questions, right? Dynamic nature है, उसका फायदा भी होता है. Dynamic questions के लिए आपको एक दिन पहले रट्टा नहीं मारना पड़ता. You just have to apply your knowledge. जो स्टैटिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, फीचर्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, वो रट्टा मार के आना पड़ता है दिमाग में. दैट इज मोर डिफिकल्ट इफ यू आस्क मी, राइट. बट यस, इसको थोड़ा सा एक वाइड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट. देन नीड ऑफ रिगरस प्लानिंग एंड पिक्यूलर सेट ऑफ स्किल्स. नो डाउट अबाउट दैट. इतना बड़ा सिलेबस है, इतने रेफरेंसेस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यू नीड रिगरस प्लानिंग. सो यू शुड हैव a broad plan, जिसको हम मैक्रो प्लान बोलेंगे, राइट. 1 to 1.5 years का प्लान. तो क्या करोगे एक्चुअली इसमें? सो फॉर एग्जांपल इसमें यू वुड गिव 8 to 9 months फॉर मेंस प्रिपरेशन, राइट. इसमें जो बचे मंथ्स है, मे बी 5 to 6 months यू वुड गिव इट टू प्रीलिम प्रिपरेशन. ये हो गया मैक्रो प्लान, राइट. तो इस 8 मंथ को नीचे ले लो, इसमें कितने दिन है आपके पास, एक्स नंबर ऑफ डेज, राइट. तो इसमें से मैं कितने हिस्ट्री को दे सकता हूँ, कितने पॉलिटी को, कितने इकोनॉमिक्स को, कितने ज्योग्राफिक एंड सो ऑन, जो सब्जेक्ट्स है. सो द डेज गिवन, एंड अगेन यू हैव टू अरेंज. उसमें ऑप्शनल भी है आपका, और सभी को एक करंट डायमेंशन है. सो 3 कंपोनेंट्स आर टू बी डेल्ट विद, जीएस, ऑप्शनल एंड करंट. तो हाउ डू आई डू इट? डेज का हो गया, राइट. थर्ड लेवल ऑफ प्लानिंग वो क्या है? डेज का हो गया, लेकिन एक डे में क्या करना है मुझे, ठीक है. तो देयर आर सम पीपल हु वांट टू रीड ओनली वन सब्जेक्ट थ्रू आउट द डे, दे डोंट लाइक चेंज, बोलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है. तो दे शुड फॉलो वीकली प्लान. व्हाट इज वीकली प्लान? एक दिन में एक सब्जेक्ट.
सपोज आपने डिसाइड किया कि 3 दिन मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा और बचे 4 दिन जीएस पढ़ूंगा, समझ में आ रहा है? और करंट इन एनी केस हैज टू बी रेड एवरी डे, 2 घंटा करंट का हर रोज का, राइट? ये उनके लिए जो चेंज पसंद नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बोर हो गया, दूसरा चाहिए, तो उनके लिए डेली प्लानिंग है। इसमें क्या है, आवर वाइज स्लॉट्स बनाओ, मॉर्निंग स्लॉट ऑफ 3 to 4 hours मॉर्निंग, राइट? देन आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग एंड नाइट में। सो मॉर्निंग स्लॉट में आपको अगर लगता है कि ऑप्शनल डिफिकल्ट है, इन डेप्थ है, तो मुझे फ्रेश मूड से मॉर्निंग में पढ़ना है, ऑप्शनल। आफ्टरनून में क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, सो न्यूज पढ़ो, करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, राइट? इवनिंग सेशन में चाय लेने के बाद थोड़ा मूड और अच्छा हो जाता है ना। सो टेक एनी टॉपिक ऑफ जीएस एंड दिस कुड बी यूज्ड फॉर रिवीजन में। सो देयर आर वेज टू प्लान थिंग्स। और ये जो फॉर्मेट है डेली वीकली, इसको इस तरह से आपने करना है, टॉपिक वाइज। मुझे कितने दिन में हिस्ट्री खत्म करना है, ऑलरेडी कितने दिन में खत्म करना है, 30 दिन में फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, इतना माइक्रो प्लानिंग चाहिए रे उसका। इसीलिए ये जो है ना 1.5 years, those are to be meticulously planned, number one, and very sincerely executed. Yes, I fully agree. Sometimes estimate गलत जाते, 30 नहीं 35 दिन लगेंगे, लगने दो ना, no problem at all. Let it happen. You can change your plan accordingly. ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा 30 दिन चाहिए 60 दिन लग गए, मतलब टाइम पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? टाइम पास कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, सो यू शुड डू दिस। दैट डज नॉट मीन यू शुड वर्क मैकेनिकली। You can have your own leisure time, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर सकते हो, that can be done. But yes, there has to be overall commitment to the examination, because this is quite challenging examination in terms of all these points that we talked about. So yes, if you do rigorous planning and if you develop certain skills, एक तरफ पढ़ाई है, दूसरी तरफ स्किल्स है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन नहीं हुआ, उसका रीजन होता है कि यू डोंट हैव स्किल्स। प्रीलिम रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स, मेंस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स एंड इंटरव्यू रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स। प्रीलिम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं उसकी बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। ये तीनों स्किल्स के बारे में बात करता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी, मैं अभी जो बोल रहा था, कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन एंड डिफिकल्टी कैन बी डेल्ट विद बाय ए गुड प्लानिंग, राइट? सो अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ स्टडी, प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंटल फेजेस। कौन से फेजेस? There are 3 elemental phases of this examination. One prelim, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी जो बताया आपको, प्लान जो आपका मैक्रो प्लान था, उसमें पहले मेंस का पढ़े, उसके बाद प्रीलिम का पढ़े। व्हाई? देखो, एवरीथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड टू यू, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो। मैं इधर बैठ के कुछ बोल रहा हूँ इसलिए एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड आस्क द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई। इफ यू लुक एट सिलेबस ऑफ प्रीलिम एंड सिलेबस ऑफ मेंस एंड इफ यू कंपेयर, सारे जो पॉइंट्स है प्रीलिम के सिलेबस के, वो सारे मेंस के सिलेबस में है। और उसके अलावा प्लस देयर आर मोर पॉइंट्स इन मेंस सिलेबस। इसका मतलब ये हुआ, आप मेंस का सिलेबस पूरा पढ़ोगे तो आपने प्रीलिम का सिलेबस भी पढ़ लिया है। जो मैं बता रहा था ना, 8 to 9 months फॉर मेंस एग्जामिनेशन, राइट? उसमें आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। तो बच्चे जो 5-6 महीने हैं आपके पास प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए, इसमें क्या करना है आपने? इसमें ओरिएंटेशन देना है आपने। यू आर सपोज टू गिव ओरिएंटेशन टू व्हाट यू हैव रेड एज पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। सो वहां पे आपने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, यहाँ पे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वही कंटेंट उस तरह से देखो, इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बन सकता है? सो रिवीजन एंड ओरिएंटेशन, टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। यही होना चाहिए प्रीलिम की स्लॉट में। हाँ, एक पॉइंट जो एडिशनल हो जाता है, दैट इज प्रीलिम जब है, मे बी अब जून में हुआ था, राइट? इन द मंथ ऑफ जून, तो इसके पीछे का 1.5 month पेपर सेट होता है, तो इसके बाद कब करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑन सेफर साइड, 1 month पहले बंद कर दो पेपर पढ़ना प्रीलिम के, हाँ किसी और जगह नहीं, तो पेपर सेट हो चुका है। सो यू आर सपोज टू इस 5-6 months में जो 5 महीने करंट है वही पढ़ना पड़ता है। सो रिविजन, ओरिएंटेशन, टेस्ट सीरीज एंड करंट, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए प्रीलिम प्रिपरेशन। ये तभी होगा जब आप मेंस का पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ोगे इन द इनिशियल 8 to 9 months। अंडरस्टूड? सो एप्रोप्रिएट प्लान ऑफ स्टडी, एलिमेंटल फेजेस को ध्यान में रखकर। इंटरव्यू के बारे में बात करता हूं, डोंट वरी। ओके, नाउ
Comprehending means what? Understanding different, yeah, and comprehending different. When you say understanding, it is mere understanding. Comprehending, you are understanding that thing with all the aspects, reading between the lines, hidden aspects, everything, right? आपको पता है क्या बहुत सारे लोग सीसैट में फेल हो रहे हैं और कुछ लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर हूं फिर भी फेल हो गया. बात इंजीनियर होने की नहीं है, क्योंकि देयर इज वन लार्ज सेक्शन व्हिच कवर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मतलब इसका मतलब ये है कि हम बहुत कुछ बन जाते हैं विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हॉरिबल है. हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? टेल यू, पैसेजेस आते हैं ना उसमें, और पैसेज को हम बहुत पहले से डील कर रहे हैं स्कूल में. प्रॉब्लम ये है उधर का अलग था, इधर का अलग है. वहां पे पैसेज आता था एग्जाम में और नीचे सवाल. हम पैसेज पढ़ते भी नहीं थे, पहले सवाल पढ़ते थे, राइट? उसकी कीवर्ड ढूंढो ऊपर पैसेज में, वो पूरा लाइन उठा के नीचे डाल दो. ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देखा जा रहा है. आपने जो पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ में आया क्या पूरी तरह से? अगर आया है तभी जाके आप आंसर कर पाओगे. एंड देयर इज अ टाइम फ्रेम, क्विकली समझना है आपको. ऐसे सवाल है, व्हाट डू यू थिंक ऑथर थिंक्स? कैंडिडेट सोच रहे हैं, कौन किसका क्या सोच रहे हैं पता नहीं चल रहा है ना. मतलब पैराग्राफ के ऊपर सीधा सवाल नहीं है, पैराग्राफ के पीछे ऑथर क्या सोच रहा है, या फिर व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रिटिकल अजम्पशन बिहाइंड दिस पैराग्राफ. इस तरह के सवाल आते हैं. सो दैट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंशन, डीपर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज इट? डीपर अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम का भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके आप उसको डील कर पाओगे. व्हाट डज दैट इंक्लूड? नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नेचर क्या है प्रीलिम एग्जामिनेशन का? एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग. ये पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है? बहुत बार लोग पता है क्या क्लासरूम में बोलते हैं मुझे, आफ्टर कंप्लीटिंग माय टॉपिक, सिलेबस कंप्लीट हुआ, सर आपने मेंस का पढ़ा दिया, प्रीलिम का कब पढ़ाओगे? ऐसे नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू पिक एनी टॉपिक, सपोज फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल है, आपको नहीं लगता इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है, या फिर इसके ऊपर एक 15 मार्कर बन सकता है मेंस के लिए? कंटेंट वही है, isn't it? तो पढ़ाई एक ही होती है रे, अलग नहीं होती. Only thing is you have to give the orientation. So you understand the orientation and look at preamble from that perspective. You will understand क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको, right? उसी तरह से 15 मार्कर आए तो मैंने क्या लिखना है in terms of paragraph, right? So this is what is required, and always keep this in mind. There is 1/3 negative marking in preliminary examination. उसके भी कुछ requirements है. अगर ऐसा nature है preliminary examination का, so what kind of skills are required? जो पॉइंट हमने मेंशन किया था, लॉट्स ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड. यू कैन सी इट हियर. नंबर 1, क्लैरिटी, शार्पनेस, प्रिसीजन इन अंडरस्टैंडिंग. ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. क्लैरिटी, शार्पनेस एंड प्रिसीजन. और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप एक बुक 10 बार पढ़ो, 10 बुक एक बार नहीं. एक बुक आप 10 बार पढ़ते हो तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है. यू टेंड टू अंडरस्टैंड माइन्यूट थिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, राइट? इसके मेंबर्स कौन है? ये प्रिसीजन हो गया, छोटी छोटी चीजें. या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कोई भी पैक है, एस्टिमेट्स है, उसमें राज्यसभा से कितने लोग आते हैं, लोकसभा से कितने लोग, दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन. इस तरह के सवाल आ चुके हैं पहले, राइट? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है, यूपीएससी किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सॉवरेनिटी, write the correct answer, choose the correct answer. तो are we clear about sovereignty? एग्जाम में बैठ के I'm telling you सारे ऑप्शन सही लगते हैं. ये किसको लगते हैं पता है क्या? One who has no clarity in terms of precision. एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर फेडरलिज्म, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए उसमें क्या है. So what is required? Clarity, sharpness and precision, right? Then wider reading, good grasp over technical and informative aspects of the subjects. हर सब्जेक्ट का एक टेक्निकल इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है, राइट? इकोनॉमिक्स का हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो अलग अलग रेट्स है, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, राइट? सो एसएलआर, सीआरआर, तो ऑल दीज आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइट? है ना?
उसके बाद पॉलिटी के बारे में अभी बताया मैंने आपको, फैक्चुअल डिटेल्स जो है छोटे छोटे वो, हिस्ट्री के बारे में फैक्चुअल डिटेल्स, राइट। कोई एक एक्ट है ब्रिटिश काल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके फैक्ट्स क्या है। सो फैक्चुअल, जिसको टेक्निकल बोला गया, इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, दोनों यू हैव टू कवर। सो वाइडर कवरेज है। कई लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि लास्ट ईयर टेक्निकल सवाल पूछे थे, इस बार क्या पूछेंगे, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। मत करो, यूपीएससी इज बियॉन्ड प्रेडिक्शंस। इस बार का प्रीलिम का पेपर बहुत गंदा था वैसे, कभी कट ऑफ 110 के ऊपर होता था, अभी वो 87 में आ गया, 87 समथिंग। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप पैटर्न मत ढूंढो, और जिस दिन आपने पैटर्न ढूंढ लिया ना यूपीएससी का, टेल योरसेल्फ दैट यूपीएससी इज गोइंग टू सरप्राइज यू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपसे ज्यादा यूपीएससी सोचता है कि आप क्या सोच रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। और देखो, यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। यूपीएससी ये नहीं बोलेगा आपको आकर के कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें सवाल नहीं आएंगे, बट ये करेगा यूपीएससी। एम लक्ष्मीकांत इज लार्जली इरेलेवेंट नाउ, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? फिर से पुराने फॉर्मेट में चला गया था यूपीएससी, यू डोंट नो। बट एडिशनल क्या चीज, इसके बारे में सोचो। विजन इनसाइट काफी फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए। विजन एंड इनसाइट, उनका मंथली बुकलेट आता है, उसके बेसिस पे आप आज सवाल को डील नहीं कर सकते। आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन लास्ट 10 years, मुझे तो ये लगता है कि यूपीएससी क्या करता है बताया क्या, मार्केट में जितने भी पॉपुलर चीजें हैं ना, जो हर कोई पढ़ रहा है, वो लेके आता है खुद यूपीएससी, देखता है, उसमें से नहीं पूछना है। क्योंकि आप सोचो ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा, कौन सा सवाल, अर्थ का शेप क्या है, सभी लिखेंगे ना। सो आई हैव टू कम अप विद सम डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इसीलिए आपका प्रिपरेशन भी डिफरेंट होना चाहिए, right? Cover all the aspects, be ready for everything. If UPSC is asking conceptual questions, you should be ready with conceptual clarity. If they fall back on facts and figures, you should be ready with facts and figures. सारे स्किल्स साथ में रखो, उनको डिसाइड करें दो कि कहाँ पे बॉल डालना है, यॉर्कर डालना है कि शॉर्ट पिच डालना है कि फुल टॉस डालना है। आपके पास सारे स्किल्स होने चाहिए हर बॉल को डील करने के लिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, करंट डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट कर देता है सिलेबस के आपको। Almost every question has got some kind of current relevance, right? In preliminary examination कुछ ना कुछ एक होता है current dimension, मेंस में भी काफी हद तक होता है, और कई बार हिस्ट्री को भी current dimension होता है। नहीं, एग्जांपल डोलावीरा का एग्जांपल जो आया प्रीलिम में, डोलावीरा के ऊपर सवाल आया कि नीचे जो फीचर्स है उसमें से कौन से फीचर्स डोलावीरा साइट के हैं, राइट। डोलावीरा करंट अफेयर्स में था बिकॉज उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। देयर इज सर्टेन करंट डायमेंशन दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो करंट पढ़ने का एक स्किल होता है करंट अफेयर्स कि सिलेबस में क्या है, मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आईपीएल के ऊपर एक दिन पहले, एक दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था आईपीएल के ऊपर, नन ऑफ योर बिजनेस, इग्नोर। राफेल नडाल के ऊपर आएगा कभी आर्टिकल, इग्नोर। और मैंने ये भी देखा एक आर्टिकल एक्सप्रेस में, हाँ, व्हाट डायनेस्टी शुड डू। डायनेस्टी मतलब इंडिया में से गांधी, राइट है ना, गांधी फैमिली ने क्या करना है, कांग्रेस ने क्या करना है, हमारा मसला है नहीं, वो सिलेबस में है क्या नहीं है। यू ओनली रीड दोज टॉपिक व्हिच आर देयर इन द सिलेबस। अब ये अग्निपथ आया, राइट, तो उसके ऊपर आर्टिकल आया, तो पढ़ो, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंगली यू चूज व्हाट इज टू बी रेड इन द करंट अफेयर, वो भी एक स्किल है। देन एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव स्टडी। एक्सटेंसिव मतलब कवरेज, इंटेंसिव थोड़ा सा डेप्थ में। पेपर में क्या आता है, डोलावीरा इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, राइट। उसमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो सर्च करो, क्योंकि सवाल इस ऐसे नहीं आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो जमाना चला गया, इतना करंट तो हर कोई पढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा आगे का सवाल आ रहा है, तो थोड़ा डेप्थ, एक्सटेंसिव भी और इंटेंसिव भी, दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट। देन रिविजन एंड रिगरस प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ये लास्ट है। मतलब ये सब करने के बाद, पढ़ाई ठीक से होने के बाद, यू गो फॉर रिगरस टेस्ट सीरीज रिजिम। समझ आ रहा है? और ये तभी हो सकता है जब आपको पढ़ाई कंप्लीट हुआ। अगर आपको पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो पीपल टेंड टू अवॉइड द टेस्ट सीरीज एंड दैट इज डिजास्टरस। उसका एक मोमेंटम बनना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने का। पढ़ाई करना एक बात है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना दूसरी बात। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई बहुत अच्छा था, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं दिया उन्होंने,
and they ended up in failure because some silly mistakes, certain follies that you commit. वो mistakes अगर उन्हें test series में किए होते, they would have been mindful about it in the examination hall. Are you getting this? And that is why rigorous test series is another important skill that you're supposed to develop. Mains examination in similar format. It is examination of writing. और सबसे बड़ी बात यह है, this mains examination is the core of the entire UPSC examination. It is core because it carries 1750 marks. कितने मार्क कैरी करता है वो? 1750. इंटरव्यू के मार्क्स है 275. तो by and large your rank is decided here, and this is fine tuning. आप लिस्ट में हो कि नहीं ये डिसाइड करता है, राइट? और ये फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है? लिस्ट में हो आप, आपको 190 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, रैंक हायर होगा, 170 मिले, थोड़ा सा नीचे होगा, फाइन ट्यूनिंग है. बट लिस्ट में तो आना पड़ेगा ना पहले. और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के मार्क्स 140 आते हैं, फिर भी उनका रैंक काफी अच्छा होता है, बिकॉज दे स्कोर्ड वेरी हैंडसमली इन मेंस एग्जामिनेशन. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. कल जो आया था अभिजीत, उसका जो अटेम्प्ट था, पहले आईआरएस था वो, एंड ही गिव अटेम्प्ट अगेन. तो इंटरव्यूज को बहुत कम मार्क्स दिए, 153 मिलता तो इंसान बाहर निकल जाता लिस्ट में, बट फिर भी वो 90 रैंक पे था. 90, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेन स्कोर ही वाज 6th इन इंडिया. आर यू गेटिंग दिस? अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाते ना तो शायद वो फर्स्ट 5 में होता. बट इज हैप्पी, उसका आईएएस मिल गया, इज हैप्पी. बात ये है, ये बहुत मैटर करता है. मेंस एग्जामिनेशन क्रक्स है वो पूरे एग्जामिनेशन का. सो राइटिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट एंड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मार्क्स. यूपीएससी ने क्लियरली लिखा है पेपर में, 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस, एंड यू हैव 180 मिनट्स. भागो, 9 मिनट्स पर क्वेश्चन. वो 9 मिनट्स जो है उसमें आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, कंटेंट याद भी करना है, लिखना भी है, थोड़ा सा एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन भी करना है. सो रफली आई वुड से 7 मिनट्स, एंड देन 2 मिनट जो हर क्वेश्चन के बचते हैं, ये सब होता है उसमें. अंडरस्टैंड करना, याद करना, एंड देन अंडरलाइन करना. सो इट रिक्वायर्स व्हाट? दैट टाइम मैनेजमेंट, राइट? प्लस वर्ड लिमिट में लिखना है, उसको एक्सीड नहीं करना. दैट कैरीज एक्स्ट्रा मार्क. If you write something very specifically in a crisp format, precisely, that will get more marks. कितना ज्यादा लिखते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना लिखा उसमें कितना कंटेंट है, that really matters. और ये सब you can develop. These skills can be developed. तो requirements क्या है? Thorough understanding of the subject. Thorough क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल आया, पढ़ा है मैंने कि याद नहीं आ रहा, and I'm struggling to remember. That will consume time. Thorough understanding. The moment I look at the question, I know the content, I'll write it. थोरो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो ये बन जाता है. सो टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाता है. टाइम मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग स्पीड, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ थरोली यू हैव अंडरस्टूड. थरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, स्पीड भी अच्छा हो, याद ही नहीं आ रहा तो क्या लिखेगा? इसलिए सबसे पहले ये है, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द सिलेबस थरोली. सडनली मैं पूछूं ना, ये बताओ क्या, यू शुड नो इट. एटलीस्ट उसके ऊपर 8-10 पॉइंट्स पता होने चाहिए, इफ नॉट ऑल. Because that is the requirement, 8 or 10 points, right? Ability to present, articulate the understanding according to demand of the question. I can show you number of papers. हर साल जो मेंस के पेपर्स होते हैं, जो हम यहाँ पे चेक करते हैं, every year I come across students who write a lot of content, right? But it is not according to the demand of the question. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, यूपीएससी has asked a question, right? Suppose for example आपको बोला है कि असेस, आपको असेसमेंट देना है. क्या देना है? असेसमेंट. लोग प्लेनली लिखते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है. आपने जो लिखा है ना, वो इसका आंसर हो जाता, डिस्कस का. कंटेंट वही है. डिड यू ऐड दिस फ्लेवर? क्या पूछा है वो अगर आपने नहीं बताया तो क्या फायदा? इवन इफ देयर इज कंटेंट, तो फिर वो फीलिंग आता है, अरे मैं अच्छा लिखा था फिर भी यूपीएससी ने मार्क नहीं दिए. ऐसे नहीं होता है. आपने लिखा है, कंटेंट अच्छा भी है, लेकिन आपने ये किया है क्या, असेसमेंट, तो क्या फायदा उसका? ऐसे नहीं होता है कि मैं जो जानता है मैं वो लिख के आऊंगा.
नहीं, जो पूछा है वो लिख के आओ, और जिस तरह से पूछा है उस तरह से लिख के आओ, that would give you marks, right? So ability to present articulate understanding according to demand of question, right? आंसर की 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, राइट? ये तीनों अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में वी रिगरसली चेक दिस। कई बार क्या होता है, द कंटेंट इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? कंक्लूजन इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन इज नॉट, ये वेग बन गया तो वी पॉइंट आउट, ये वेग बना हुआ है, इसको स्पेसिफिक करो, इसको और स्पेसिफिक लिखो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है दैट यू आर सपोज्ड टू डेवलप। ईच आंसर शुड बी वेल थॉट आउट, शार्पली प्रिसाइजली ऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ आर्गुमेंट। आपका हर आंसर ऐसे होना चाहिए कि जो एक एग्जामिनर को, जो इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएटर को एक फील दे दे कि हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ एक रिच कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, राइट? ओके। एंड जो 20 सवाल होते हैं ना, वो सारे के सारे उसी क्वालिटी के होने चाहिए। ये भी एक आर्ट है, राइट? I will tell you one thing. In last 8-10 years, the students who have got through this examination और जो नहीं हुए हैं, उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो नहीं हुए एक हाथ दूसरा सवाल छोड़ देते हैं। अब जो 4-4, 5-5 छोड़ रहे हैं उनको तो मैं डिस्कशन में भी नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग देम टू डिस्कशन एज वेल, राइट? एक हाथ दूसरा सवाल छोड़ दिया ना, यू आर मिनिमाइजिंग योर चांसेस। एंड दोज हु गेट थ्रू विद गुड रैंक्स, दे हैव सॉल्व्ड ऑल 20 क्वेश्चंस। और मैंने उनके पेपर देखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जितने अच्छे से लिखा होता है ना, उतना ही अच्छा 20th क्वेश्चन होता है। सो दैट मींस वो मोमेंटम कैरी करते हो एंड तक। आप ही बताओ ना मुझे, बहुत अच्छा खेला लेकिन लास्ट सेशन में विकेट चली गई तो मैच हार जाता है इंसान। तो अच्छा खेलने का मतलब क्या हुआ? आर यू गेटिंग दिस? यू हैव टू विन द मैच रे। हाँ, आई डिड माय बेस्ट इन 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन हाथ से निकल गए, लॉस, मेक्स नो सेंस। So you need to understand this. You stay there, right? First question and last question both should carry equal kind of depth. ये जो arguments है ना, well thought out, sharp, precise, ये कब होगा पता है? Again, back to 2 things. ये आप ये 2 करोगे तो ये होगा। Understanding बहुत अच्छा है, time में complete कर पाओगे। Coverage अच्छा है, पूरे सवाल अटेंड कर पाओगे, right? और ये precise articulation है आपके पास, you can do this. और ये practice से होता है। कोई मतलब बाय बर्थ ही क्वालिटीज लेके नहीं आता, इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए टेस्ट सीरीज अगेन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू गो बियॉन्ड ऑब्वियस, लिटरल एंड टेक्सचुअल मीनिंग। सामने जो है उसके आगे जाना चाहिए इंसान ने। देखो एक सवाल आया था, हिस्ट्री ऐसा है, लोगों को लगता है कि जो कंटेंट है वो प्रेजेंट करना, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत अलग सवाल पूछे गए। एक सवाल आया था इस टाइप का, assess to what extent, क्या पूछा है? Assess to what extent British government complicated the process of transfer of power। 47 में जो इंडिपेंडेंस मिला, 1940s में जो अलग अलग negotiations हुए थे, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट डेलीगेशन, राइट? उसके बाद CR फॉर्मूला, देन वेवेल प्लान एंड माउंटबेटन प्लान। तो ये जो negotiations हैं इंडियन लीडर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, उस प्रोसेस को, ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू व्हाट एक्सटेंट बोला है। क्या बोला है? टू व्हाट एक्सटेंट कॉम्प्लिकेट किया है, ये पूछा। तो आपने असेसमेंट देना चाहिए, टू व्हाट एक्सटेंट, टू फुल एक्सटेंट, टू हाफ एक्सटेंट, या फिर टू माइनर एक्सटेंट, ये लिखो उसमें, राइट? ये कोई बुक आपको सीधा सीधा नहीं बताएगा। अलग अलग बुक्स पढ़ोगी तो उसमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड टू सम एक्सटेंट। और कॉम्प्लिकेट करने वाला एक और फैक्टर भी था, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। आर यू गेटिंग दिस? तो पूरा का पूरा ब्लेम नहीं है, थोड़ा सा ब्लेम है, दोनों है उसमें। दे कैरी अ लॉट ऑफ ब्लेम, बिकॉज ये जो एक डिवाइड बना, ये भी लिखना है आपने, दैट द डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वाज वन रीजन व्हाई इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। बट अगेन हियर ब्रिटिश वर रिस्पांसिबल, एंड पर्टिकुलरली द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो आप ये होना चाहिए आपके पास, तो वो सारा कंटेंट उसमें immediately reflect होना चाहिए। So that is how this examination is to be dealt with, right? Questions to go beyond the obvious literal and textual meaning. Understanding needs analytical dimensions. Analysis होना चाहिए। सवाल 1940s में आया है, लेकिन मैं क्यों ना बताऊं कि मोर्ले मिंटो से लेकर के आगे
ऑफिशियली डिवाइड रूल पॉलिसी है, उसके पहले भी था, अनऑफिशियल था। तो 40s में ही क्यों? तो आप पीछे जाकर के देखता हो ना कि कोई दूसरा एनालिटिकल डायमेंशन है क्या, लिखो उसको, तो आपका एक पॉइंट अलग होगा, यू विल गेट कपल ऑफ मोर मार्क्स, एंड देयर इज अ फाइट फॉर एवरी मार्क इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस अबाउट मेंस। अंडरस्टैंडिंग जो है, इट नीड्स टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस लिटरल टेक्सचुअल मीनिंग और एनालिटिकल डायमेंशन। पीछे के 2 पॉइंट डेलिबरेटली है और ये 2 नए हैं। इंटरलिंकिंग कन्वेंशनल पार्ट विद करंट एंड कंटेम्पररी इवेंट्स, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आप जो पढ़ रहे हो ना, राइट, वो है स्टैटिक कन्वेंशनल, राइट। आपको अप्लाई करने को आना चाहिए किसको? करंट डायमेंशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो वॉट एवर यू रीड इन, से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल कोई साइक्लोन आया, साइक्लोन्स तो आते रहते हैं, राइट। तो स्टैटिक पार्ट क्या है उसका? एनसीईआरटी की बुक से, जीसी लियोंग से, डू यू नो द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन? वो कौन सा पार्ट है? स्टैटिक। साइक्लोन फॉर्मेशन, स्टैटिक पार्ट, राइट। तो जो साइक्लोन है उसका नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर कैसे बनता है? समझ में आ रहा है आपको? उसने कहाँ हिट किया एग्जैक्टली, कौन सा एरिया इंडिया का? ये कौन सा पार्ट हो गया? करंट डायमेंशन हो। तो क्वेश्चन किसी पे भी आने दो, यू हैव बोथ द कंटेंट। साइक्लोन आया तो इमीडिएटली जब मैं, अच्छा साइक्लोन आया तो कहाँ फॉर्म होता है? 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, उस एरिया में नहीं, इक्वेटर के उसके आगे, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स अपसेंट है, राइट। देन अनइवन हिटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ओशन, क्या होता है फिर? लो प्रेशर बेल्ट। सो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड्स ट्रेवल बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कुछ सर्कुलर बन जाता है, एंड दैट इज साइक्लोन। there is eye of cyclone, there is vertical column, right? There is water vapor which is maintaining cyclone, वगैरह वगैरह। बात ये है, do you have exact understanding of the conventional part? वो अगर है तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि करंट में साइक्लोन आया, I know what it is. So application of it. It's not just about geography, it's about everything, right? For example, मैंने गवर्नर पढ़ लिया, एम लक्ष्मीकांत से, कन्वेंशनल टॉपिक। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर क्या होता है, राइट, कैन ही बी टर्मिनेटेड, वो क्या प्रोसीजर है, हाँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है कि रिसेंटली द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बिकम कंट्रोवर्शियल, सो डिस्कस सुटेबल मेजर्स सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस रिमेन्स इम्पार्शियल। अब इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, अगर वो रिसेंट है तो पेपर में पढ़ना पड़ता है क्या हुआ एग्जैक्टली, वो डायमेंशन क्या है। सो कन्वेंशनल एंड करंट, कोई भी सब्जेक्ट हो, दैट यू शुड नो। देन प्रोस्पेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग, अभी मैंने एक सवाल जो बनाया बैठे बैठे, राइट, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स सो दैट द ऑफिस ऑफ गवर्नर रिमेन्स इम्पार्शियल। तो ये क्या है? आपको आगे का पूछा जा रहा है, प्रोस्पेक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। सजेशन दो, प्रिस्क्रिप्शन दो, राइट। तो ये डायमेंशंस है आंसर राइटिंग के। बट डोंट वरी, ये देख करके ऐसे लग रहा होगा ना इतना करना है क्या, मुश्किल है, फिर कोई मुश्किल नहीं है, ये पता होगा पहले, और साल भर में ये करोगे तो इट बिकम्स अ हैबिट, ठीक है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड? दिस इज रिक्वायर्ड, acquiring, developing, enhancing knowledge about every component। कौन सा कंपोनेंट? शॉर्ट में लिखा है रे, ये मतलब you should always keep this in mind, every component of syllabus, दुनिया का हर कंपोनेंट नहीं, of syllabus, ठीक है। and to express it sharply, this is the crux of mains examination। समझ में आया? okay, now syllabus कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया क्या? एग्जाम को समझना मतलब बस 3 स्टेप्स है ऐसा, ये नहीं। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या पूछा जाता है, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब कुछ है। ओके, नाउ सिलेबस, रीडिंग सिलेबस, रीड सिलेबस केयरफुली 3-4 टाइम्स। इफ यू आर अ बिगिनर, यू डू दिस इमीडिएटली, राइट। और कहीं पे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इनडेफिनेट लग रहा है या फिर इनफाइनाइट लग रहा है, क्लैरिटी नहीं है, रीच आउट टू टीचर, पूछो सर इसका मतलब क्या है, एटसेट्रा है तो आगे क्या आएगा सब बताओ। कई जगह पे एटसेट्रा मिलेगा आपको सिलेबस में, सो टॉक टू योर टीचर, राइट। बट अंडरस्टैंड सिलेबस केयरफुली, सो अंडरस्टैंड डिफरेंट सेक्शंस, कंपोनेंट्स, चैप्टर्स इन सिलेबस। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी एक टॉपिक ले लो आप, उसमें एक जनरल स्टेटमेंट होता है, बट उसके अंदर क्या है, प्रीलिम में क्या बोला, जो फर्स्ट लाइन है प्रीलिम की सिलेबस का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो क्या क्या आता है इसमें, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और तीनों में पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, है ना। तो ये सब कुछ, तो पॉलिटिकल में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन,
टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, किंग्स कौन थे, है ना, उनकी पॉलिसीज क्या थी। प्रीलिम में एक सवाल आया था, क्या सवाल आया था, मुगल एम्प्रेस के नाम दिए, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सवाल पूछे पेंटिंग के ऊपर, पेंटिंग में एक बदलाव आया, किसके अंडर आया, तो क्या क्या इन्वॉल्व इसमें, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम। जब पढ़ोगे तो ध्यान में रख के पढ़ोगे कि हाँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल, एंड देन फोकस ऑन कल्चर। ये चीजें जो है ना, अब टॉपिक्स क्या है उसमें, पेंटिंग है, लेकिन मुगल पेंटिंग किस तरह का था, मुगल पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, डेवलपमेंटल फेजेस, ये पढ़ लिए मैंने। लेकिन किस किस राजा के अंडर क्या हुआ, ये अगर नहीं पढ़ा है तो मेक्स नो सेंस। सो हर कंपोनेंट का पढ़ो, समझो। होता है ना कि ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस, क्या करना है, सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगिनर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पता होना चाहिए कि कितने सवाल पूछे गए टॉपिक के ऊपर, कैसे सवाल पूछे गए, राइट। सो इट्स अ प्रोसेस। तो इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करो, गेट द असिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस थरोली। सिलेबस एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है जो आपका सिलेबस या फिर जो 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 स्कोप है उसको लिमिट कर देता है। You can prepare a plan according to syllabus. You can choose a reference list according to syllabus. You can read newspapers, journals in the light of syllabus. PYQ question paper analysis can be done under the light of syllabus. So it's a guiding star. Syllabus क्या है? Guiding star. हमेशा लोग पूछते हैं पेपर में क्या पढ़ना है, मैं नहीं बताना चाहिए क्या, मैं क्या बताऊंगा, बताओ, सिलेबस देख के बताऊंगा ना, तो आप लर्न करना उसको, राइट। एक इंडिपेंडेंस बनना चाहिए, एक बार गाइडेंस ले लिया उसके बाद शुड बिकम इंडिपेंडेंट। हाँ, बहुत ही ट्रिकी कुछ आया ना, यू रीच आउट अगेन, हर बार आके नहीं पूछना चाहिए, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। वी कैन टेल यू राइट कि हाँ ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, लेकिन इज इट पॉसिबल दैट एवरी डे जो न्यूज़पेपर है आपके साथ बैठ के मैं बताऊं कि ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, पॉसिबल नहीं है। एक समय में आपने एक डेवलप करना चाहिए कि हाँ ये क्या रिलेवेंट है, क्या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 चीजें, आईपीएल का टॉपिक, किसी एक प्लेयर का टॉपिक, है ना, किसी एक पॉलिटिशियन का टॉपिक, टॉपिक नहीं है, पॉलिसी, स्कीम, राइट, एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल न्यू फीचर, हाँ, इकोनॉमिक नया कुछ इवेंट आया है, हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट है, सिलेबस में क्या है वो ढूंढना है। इसीलिए सिलेबस को ठीक से समझना, उसके फ्रेमवर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गाइडिंग फ्रेमवर्क। समझना है, दिस इज सिलेबस। ओके, सी आई हैव केप्ट दिस शॉर्ट बिकॉज यूपीएससी में बहुत कुछ है। मैंने इस बार 2 एस्पेक्ट रखे थे, एक करियर के बारे में डिस्कशन, दूसरा एग्जाम को समझना, ठीक है। एंड व्हाइल डिस्कसिंग आई हैव टॉक्ड अबाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एज वेल। सो दीस आर 4 कंपोनेंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस। इसके ऊपर आपके कुछ सवाल है तो बताओ मुझे, इफ एनी क्वेश्चंस लेट मी नो।